Good morning parents and dear children. I am Mrs. Reena Dalal, social science teacher. We are doing our chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? And today we will discuss the topic, the role of the parliament. The role of the parliament. We can say that after 1947, means after independence, the parliament was made up in our country. Means after getting independence, the parliament was created in our country. The parliament in our country has immense power. Immense power. हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इमेंस पावर है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर? बिकॉज द पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर हमारे कंट्री में पार्लियामेंट इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. यहाँ इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट. दैट्स व्हाई इट हैज इमेंस पावर इन आवर कंट्री. और वी कैन से दैट द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री इज द हाईएस्ट और सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. एंड इन हिंदी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड संसद. It is also called Sansad. If we talk about the structure of the parliament, then I told you in the introduction of this chapter that the parliament is consist of president and the two houses of the parliament. Two houses of the parliament. Which two houses? Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha. These are the two houses of the parliament. Now see this picture. This is parliament of our country and these are the two houses of the parliament. This picture is for the Rajya Sabha and this is for the Lok Sabha. These are the two houses of the parliament. हमारी जो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और ये इसके हाउसेज यहाँ पर दिखाए गए हैं. Now we will discuss about the houses of the parliament, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Lok Sabha, it is also called House of People. House of People. And why called House of People? Because this house of the parliament represent the people of our country. That's why it is called the House of the People. And Rajya Sabha, it is called the Council of State. Council of States. Why is it called Council of States? Because this house means Rajya Sabha represent the states of India. That's why it is called the Council of the States. And if we talk about the total strength or total members of the houses of the parliament, then we can say that at present the members of the Lok Sabha are 545 and the total members of the Rajya Sabha at present, how many members? 245. For Lok Sabha there are 545 members and for Rajya Sabha there are 245 members. Now out of these 545 members, 543 members are elected by people plus 2 members are nominated by the President of India. And out of these 245 members, 233 members are elected and 12 members are nominated by the President of India. Now who is the head of these houses? If we talk about the Lok Sabha, then we can say that the Lok Sabha is presided over by the Speaker. And who is the current Speaker of Lok Sabha? Mr. Om Birla.
who belongs to the Bharatiya Janata Party or BJP. He is the current speaker of the Lok Sabha. What about Rajya Sabha? The Vice President of India. The Vice President of India chair the Rajya Sabha. And who is current Vice President of India? Mr. Venkaiah Naidu is the Vice President of India at present. That's why he chairs the Rajya Sabha. Now we will talk about the elections of the Lok Sabha. Elections for the Lok Sabha. Lok Sabha is elected usually once every 5 years, or we can say the tenure means the time period for the Lok Sabha is 5 years. हर 5 साल के बाद जनरली क्या है जो लोक सभा है उसके इलेक्शन होते हैं, बट ये बिल्कुल फिक्स नहीं है. क्यों नहीं है? अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये प्रपोजल पास होता है तो जो गवर्नमेंट है वो क्या है, पावर से बाहर हो सकती है. मीन्स जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से क्या है 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही लोकसभा के जो इलेक्शन है वो फिर से करवाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. अब ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? मान लो कोई भी जो पार्टी है जिसने लोकसभा के अंदर मेजोरिटी हासिल की है और उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन इन 5 इयर्स तक जब तक वो गवर्नमेंट चलेगी उसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी मिली रहनी चाहिए, उसको बहुमत प्राप्त होना चाहिए. अगर बीच में उनके कुछ भी जैसे जो भी रीजन रहते हैं, कोई काम ठीक से नहीं करे या कोई और रीजन है, अगर जो यहाँ मेंबर्स है लोकसभा के वो क्या है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या इस टाइप का जो प्रपोजल लेके आते हैं, मीन्स वो ये कहते हैं कि करंट गवर्नमेंट में हमें जो है विश्वास नहीं है, ये ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए हम अपना सपोर्ट या जो समर्थन है वो इनसे वापस लेते हैं. तो ऐसे में जो भी लोकसभा का लीडर है जो कि प्राइम मिनिस्टर है उसको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिजाइन करना पड़ता है और इससे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से लोकसभा के लिए जो इलेक्शन है वो करवाने पड़ते हैं. जनरली क्या है 5 इयर्स के बाद होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रपोजल पास होता है तो उससे पहले भी इलेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं. अब जो लोकसभा है इसके इलेक्शन हमारी कंट्री में होते कैसे हैं? Our country is divided into numerous constituencies. CIES. Constituencies. Numerous means many. Constituency. What is a constituency? Our country is divided into many areas for election purpose, and each area is called a constituency. Okay? और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को या एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है. मान लो जैसे ये एरिया है हमारी कंट्री का, सपोज इट इज एरिया फॉर आवर कंट्री. हमारी जो कंट्री, मैंने क्या कहा 545 मेंबर्स होते हैं हमारी लोकसभा के अंदर, इसमें से 543 के लिए इलेक्शन होते हैं एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब क्या है 543 in our country there are 543 constituencies for the Lok Sabha. Yes, इतने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो लोकसभा के लिए हमारी कंट्री में है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मीन्स एक तरह से एक एरिया ही हो गए, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या है एक जो पर्सन है उसको इलेक्ट किया जाता है. वैसे तो क्या है बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करती है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में बहुत सारी पार्टी उसके अंदर आएंगी, लेकिन उनमें से उन पार्टीज में से क्या है जो भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर आएगी उसमें से किसी एक मेंबर को, किसी एक पर्सन को वहां से इलेक्ट किया जाएगा. अगर हम अपनी स्टेट हरियाणा की बात करें तो लोकसभा के लिए हरियाणा के अंदर 10 सीट्स है, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. मीन्स हमारे हरियाणा से 10 मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट करके लोकसभा के अंदर भेजा जाता है. अब किसी में 10 है, किसी में इससे बहुत ज्यादा भी है, किसी में कम भी है. ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. जिस भी स्टेट के
जैसी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर जो लोकसभा है उसकी सीट्स को डिसाइड किया जाता है। हरियाणा में मैंने आपको कितनी बताई हैं, देयर आर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा। अब जैसे जो इलेक्शन है लोकसभा के लिए, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, वहां से क्या है जो पर्सन उनको इलेक्ट किया जाता है, और ये जो पर्सन है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं दे बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। वहाँ डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी उनसे बिलोंग करते हैं, फिर जो भी मेजोरिटी में पार्टी आती है वही जो पर्सन है वो क्या है इलेक्ट होकर लोकसभा के अंदर आते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वी कैन से लीडर्स, दीज leaders are known as the member of the parliament, means MPs. MPs, what is the full form of MPs? Members of the parliament. These all MPs together make up the parliament. ये सभी क्या है पार्लियामेंट के लिए आते हैं और यहाँ पर क्या है अपने जो डिसीजन है वो देते हैं या अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा के अंदर क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो लोकसभा है उसके अंदर जैसे मैंने बताया 2 persons आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से पर्सन है, इनके लिए इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? दीज 2 members आर एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियंस कौन है? जैसे कि हमें पता है कि बहुत साल तक हमारी कंट्री के ऊपर जो ब्रिटिश है उन्होंने रूल किया, लेकिन 1947 में हमें फ्रीडम ली और जो ब्रिटिश है वो यहाँ से चले गए। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो कुछ जो ब्रिटिश पर्सन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे इसी कंट्री के अंदर, दे आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन। तो क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होता है, तो इन पर्सन्स को भी इनके राइट दिए जाते हैं, इनको भी पार्लियामेंट के अंदर क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स वाई 2 members आर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो लोकसभा है इसके इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट है वो बनती है और क्या होता है कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी पार्लियामेंट क्या करती है परफॉर्म करती है। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन से वो फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन इज टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। To select the national government. Next function is to control, guide and inform the government. Inform the government. And the third function is law making. ये जो लॉ मेकिंग जो थर्ड फंक्शन है हमारा सिविक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा चैप्टर इसी पे है, लॉ मेकिंग कैसे होती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो ये फंक्शंस है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट एंड टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये कुछ फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट के जो ये परफॉर्म करती है। एंड वी विल डिस्कस दीज फंक्शंस इन डिटेल बट इन नेक्स्ट लेक्चर। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।